श्रीवेङ्कटेश्वराय नमो नमः। श्रीमन्नारायण नमो नमः। तिरुमल तिरुपति नमो नमः। बस्तर बालाजी नमो नमः। गोविंद गोविंद वेंकटेश्वर बस्तर के बालाजी। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमो नमः। बस्तर धाम विराजे बालाजी नमो नमः। श्रीमन नारायण नमो नमः। जय जय बस्तर बालाजी नमो शंख चक्र गदाधारी प्रभु नील मेघ स्वरूप तुम्हारा। तिरुमल से बस्तर आए भक्तों का भाग्य संवारा। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमो नमः। बस्तर धाम विराजे बालाजी नमो नमः। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमो नमः। गूंजे तेरा नाम महान। बस्तर की पावन माटी बोले वेंकटेशा तू ही भगवान। नमो नमो वेंकटेशा नमो। अलमेलु माता संग शोभित करुणा सागर पार। शरण पड़े जो बस्तर वासी कर दो उनका उद्धार। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमो नमः। बस्तर धाम विराजे बालाजी नमो नमः। श्रीमन नारायण नमो नमः। जय जय बस्तर बालाजी नमो नमः। जय जय बस्तर बालाजी नमो नमः। इस
आयोजन के पीछे केवल व्यवस्थाएं नहीं, बल्कि वर्षों की निष्ठा है। रजत जयंती के भव्य कार्यक्रम में सभी सदस्यों ने कठिन परिश्रम से हर जिम्मेदारी निभाई, जिन्होंने इस मंदिर को अपने जीवन का हिस्सा बनाया। आज उन्हीं की जुबानी इस सफर की कहानी। బస్తరు ఛత్తీస్గఢ్ బస్తర్ జిల్లాలో జగదల్పూర్లో 2001లో 2 నిలువులు అంటే 20 అడుగులు లోతున్నటువంటి ఈ ప్రదేశంలో ఆ స్వామి బాలాజీ సంకల్పం కలిగింది. ఇక్కడే నేను కూర్చుంటానని చెప్పడం చేత ఈ స్థలాన్ని అంతటిని కూడా శుద్ధి చేసి ఆనాటి పెద్దల కమిటీ అందరూ కలిసి ఈ మందిర నిర్మాణానికి పూనుకున్నారు. ఇందులో చక్కనైనటువంటి యంత్రాలు వేసి దేశాన్నంతటినీ రక్షించేటువంటి పవర్ కలిగినటువంటి ఆకర్షణ యంత్రాలు వేసి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారిని ప్రతిష్ఠ చేయడం జరిగింది. నాటి నుంచి నేటి వరకు దినదినాభివృద్ధిగా బస్తర్ జిల్లాయే కాకుండా ఛత్తీస్గఢ్లో ఉండేటువంటి రాష్ట్రంలో ఉండేటువంటి ప్రజలు భక్తులు, అదే కాకుండా రాష్ట్రేతరాల నుంచి ఉండేటువంటి ప్రజలు కూడా బాలాజీ దర్శనానికి వస్తూ అతి వైభవంగా నేటికి 25 సంవత్సరాలు పూర్తయింది. ఆ రజతోత్సవాన్ని ఈ సంవత్సరం జరిపించుకునేటప్పుడు ఏ రాష్ట్రంలో మన ఆంధ్రులు ఉన్నారో అసోసియేషన్స్ సంఘాలు ఎక్కడెక్కడైతే ఆంధ్ర సంఘాలు ఉన్నాయో తెలుగు సంఘాలు అందరినీ కూడా ఆహ్వానించి అందరూ కూడా ఇందులో అన్వయించాలని మన కమిటీ వారందరూ కూడా ఏర్పాటు చేసి శ్రీ వాసుదేవరావు గారు చైర్మన్గా మిగతా సభ్యులందరూ ఈ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొని చక్కనైనటువంటి కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించి మళ్ళా దాన్ని బ్యాటరీలో రీఛార్జ్ ఎలా చేస్తారో ఆ స్వామి తాలూకా పవర్ పెరిగి అందరినీ కూడా తిరిగి ఆశీర్వదించేలాగా ఈ సంవత్సరం 25వ సంవత్సరం పూజలు కార్యక్రమాలన్నీ కూడా వైభవంగా జరిపించి అందరినీ కూడా మనమే కాకుండా మన సంఘాలు ఎక్కడున్నాయో అందరూ కూడా తృప్తి పడాలి, అందరూ కూడా ముక్తిని పొందాలి, అందరూ కూడా తరించాలి అనే భావంతో ఏర్పాటు చేసినటువంటి మహత్తరమైనటువంటి ఈ నవాన్నిక దీక్షతో చేసేటువంటి ఈ యజ్ఞం అతి వైభవంగా జరిగింది. ఈ రోజున కొన్ని వేల మందికి అన్నసంతర్పణ నిరతాన్నదాత ఆనాడు భద్రాచలంలో రామదాస్ ఎలాగ అన్నదానం చేశాడో అలాగే ఇవాళ మన జగదల్పూర్లో విశేషమైనటువంటి 50,000 మందికి తక్కువ లేకుండా తినేలాగా అన్నం ఏర్పాటు చేశారు, తగినటువంటి ప్రసాదం ఏర్పాటు చేశారు, అన్ని విధాల అనుకూలంగా ఉండేటువంటి భోజనాలు ఏర్పాటు చేసి భక్తులందరినీ కూడా తృప్తి పరిపించి అన్నదానముల కన్నా అన్నదానమే గొప్ప, కన్నతల్లి కంటే ఘనము లేదు అనేటువంటి సిద్ధాంతాన్ని అనుసరించి మన జగదల్పూర్లో మన బాలాజీ మందిరంలో ఉండేటువంటి ప్రస్తుత కమిటీ ప్రజలు భక్తులు అందరూ కలిసి గొప్ప ఏర్పాటు చేశారు. దీనివల్ల దేశమంతా కూడా తరిస్తుంది. కాలమానం ప్రస్తుతం బాగులేదు. అతిచార గతే గురుహు వక్రస్తోపి శనీశ్వర ఆహాకారం జగత్సర్వం దుర్భిక్షం ప్రేతరాదిశి అని శాస్త్రం చెప్తున్నది. ఇప్పుడు అతిచారంలో గురుడు ఉండడం చేత, శని వక్రించడం చేత దేశము ప్రపంచము అంతా కూడా అల్లకల్లోలంగా ఉంటుందని శాస్త్రంలో చెప్పబడి ఉంది. అదంతా కూడా శాంతింపచేయాలనేటువంటి సంకల్పంతో బాలాజీ మందిర్ కమిటీ చక్కనైనటువంటి ఏర్పాటు చేసి దేశం కులాసాగా ఉండాలి, నాయకులు బాగుండాలి, ప్రజలంతా బాగుండాలనేటువంటి సంకల్పంతో ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఈ పవిత్రోత్సవాల్లో బ్రహ్మోత్సవాల్లో అందరూ కూడా అన్వయించి తరించవలసిందిగా మరొకసారి ఆ శ్రీయప్పతి వెంకటేశ్వర స్వామి వారిని ప్రార్థన చేస్తున్నాం. మరి శ్రీ మద్ది శ్రీనివాసరావు గారు దీనికి ఈ సంఘానికి ప్రస్తుతం ఏంటంటే దీనికి కమిటీ ఉత్సవ కమిటీకి ప్రెసిడెంట్గా ఉండి ఈ కార్యక్రమాన్ని నడిపిస్తున్నారు. మరి ఇది ఇంకా దివ్యస్థలం అవ్వాలి, తిరుపతి ఎలాగుందో ఆ విధంగా ఇక్కడ తయారవ్వాలనేటువంటి వారి సంకల్పం. ఆ సంకల్పాన్ని భగవంతుడు ఎప్పుడు కూడా సిద్ధింపజేస్తాడు. ఆ విధంగా ఈ దేశంలో ఉండేటువంటి అంటే ఛత్తీస్గఢ్లో ఉండేటువంటి భక్తులందరూ కూడా పూర్తిగా ఎలాగైతే పువ్వు మీదకి తేనె కోసం తుమ్మిది వెడుతుందో అలాగే వెంకటేశ్వర స్వామి అంటే భగవంతునికి చేరువుగా వీరందరూ వచ్చి సత్సంకల్పంతో సద్భావాలతో మెలగాలనేటువంటి సంకల్పంతో ఏర్పాటు చేసినటువంటి మందిరం ప్రతి ఒక్కరూ దర్శనం చేసుకోవాల్సినటువంటి విశేషమైనటువంటి శక్తి ఇక్కడ ఉన్నది కాబట్టి అందరూ ఒకసారి దర్శనం చేసుకోవాల్సిందిగా మరొకసారి తెలియజేస్తుంది. गोविंदा गोविंदा। 25 वर्ष पूर्व जब हमने मंदिर का शिलान्यास किया था 1999 में और इसका प्रतिस्थापना हुई थी, तो हमने नहीं सोचा था कि इतना भव्य मंदिर बनेगा।
और बालाजी भगवान की कृपा सब पर बनी रहे और जितनी भी व्यवस्था है वो दुरुस्त रहे, अच्छे से रहे और भगवान बालाजी की कृपा सब पर रहे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि विगत 25 वर्षों से शहर के सभी लोगों, सभी हिंदू सनातनी धर्मों के साथ श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी मंदिर के प्रतिवर्ष के वार्षिक उत्सव में सम्मिलित होकर हर कार्यक्रम में सभी ने भाग लिया, सभी ले रहे हैं और पिछले 25 वर्षों से ये कार्यक्रम चल रहा है लगातार और इसको एक भव्य और भी एक अच्छा रूप देते हुए और भगवान तिरुपति बालाजी के तर्ज पर यहाँ सभी कार्यक्रमों को और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से करते हुए इन सभी कार्यक्रमों को यहाँ के जन तक पहुँचाने के लिए और यहाँ के पूजन का लाभ यहाँ के सभी छत्तीसगढ़ वासियों को मिले और यहाँ की सुख समृद्धि बनी रहे, इसलिए यहाँ बृहद रूप से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और पहले से भी अच्छा और 25 वर्षों से लगातार होते आ रहा है, तो उसको इस बार और भी अच्छा करके सभी भक्तजनों के साथ एक उत्साह के साथ, आनंद के साथ इस उत्सव को मनाने का निर्णय पूरे कमेटी द्वारा एवं पूरे जगदलपुर शहरवासियों के द्वारा लिया गया है। धन्यवाद। इसीलिए रखे है भगवान का स्थापना अब हम लोग किए थे उस दिन, उस टाइम भी 7 दिन का कार्यक्रम रखे थे, लाखों लोग आए थे उस टाइम। अभी भी आप देख रहे हैं, आप देख के सबको विदित है, पूरा शहर, हर समाज भगवान का श्री चरणों में उनको उनका पूजा में, उनको दर्शन करने में, उनका प्रसाद ग्रहण करने में इतना उत्सुक है। क्यों? उनको एक बार दर्शन करके उनका प्रसाद ग्रहण करने से हमारा जीवन धन्य हो जाएगा करके सभी लोग सोच रहे हैं। आपको एक बात बताऊंगा, रजतोत्सव इसीलिए मना रहा है, भगवान का 25 साल का निर्विघ्न हर साल भव्य रूप से कार्यक्रम चल रहे हैं। ये जय श्रीमन नारायण, भगवान को कोटि कोटि नमन। भगवान श्री बालाजी वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर को बनाने को कंकणबद्ध हुए हैं। उसमें से 22 लोग का एक कमेटी बना है। वो 22 लोग अपना तन मन धन से वो भगवान के लिए काम किए हैं। अब भव्य मंदिर 2001 में भव्य मंदिर बन गया है। जो कमेटी वार्षिकोत्सव हो रहे हैं 2001 में भव्य मंदिर बन गया है। उसका बाद से दिन दिन प्रगति चल रहा था। उसमें आभास हम लोग को ये हो रहा था, ये भगवान का अंश यहाँ आया है। हमको बहुत पूर्ण विश्वास है उनका करुणा दृष्टि से हम सब परिवार भी 22 मेंबर को भगवान ने ऐसा चुना है जो 22 मेंबर तन मन धन से समर्पित है मंदिर के लिए। बहुत अच्छा कमेटी, बहुत अच्छा लोग कमेटी ट्रस्टी बना है। वो ट्रस्टी वो 2021 से आज 25वां वर्षगांठ चल रही है, तो सिल्वर जुबली का प्रोग्राम बना रहे हैं। 7 दिन का प्रोग्राम है। जनवरी से 24 से फरवरी 1 तारीख तक ये प्रोग्राम चल रहे हैं, भव्य प्रोग्राम चल रहे हैं। ये प्रोग्राम देखने के लिए पूरा छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बीजापुर, बस्तर डिस्ट्रिक्ट, कहाँ से लोग, आंध्र प्रदेश से लोग आते हैं। आके अपना जो प्रकट करते हैं कि ये भव्य कार्यक्रम हो रहे हैं यहाँ, हम लोग बहुत प्रसन्न हैं बोल के लोग बहुत खुशी होके भगवान का आशीर्वाद लेके जा रहे हैं। हमको उनको देख के बहुत अच्छा लगता है। और हमारा जो सब शहरवासियों को भगवान एक को रक्षा करने के बद्ध हो गया है। ऐसा कार्यक्रम चल रही है। जय श्रीमन नारायण। फिलहाल अभी कमेटी का चेयरमैन है श्री वासुदेव राव जी है। वो ओरिजिनल में वो आर्किटेक्चर है। अच्छा, उन्हीं का मार्गदर्शन से शुरू में जो मंदिर बनाया है उन्हीं का मार्गदर्शन से बनाया है। उन्हीं का प्लानिंग से बनाया है। अभी फिलहाल
वो चेयरमैन है, उन्हीं का मार्गदर्शन में सब कमेटी वाले पूरा ये कार्यक्रम को, भव्य कार्यक्रम को, आयोजन को हम लोग सब पार्टिसिपेट करके ये कर रहे हैं। जय श्रीमन्नारायण। कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायने श्रीमद् वेंकटनाथाय श्रीनिवासाय मंगलम। जगदलपुर में जो प्रतिष्ठा हुआ वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में, आज इस साल 25वां वार्षिक महोत्सव ब्रह्मोत्सव संपन्न हो रहा है। रजतोत्सव बोलता है इसको। 2001 में वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुआ वहाँ यहाँ। उस समय से हर साल मंदिर का जो स्थिति और भक्त लोगों का दर्शन करने के लिए जो भक्त लोग आ रहा है, वो सब कुछ स्थिति हर दिन बढ़ते आ रहा है। ये बढ़ने का कारण ये है भगवान के लीला। यहाँ भगवान का ये विशेषता है, पांचरात्रागम शास्त्रानुसार भगवान का प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुआ। इसीलिए पांचरात्रागम के अनुसार यहाँ पूरा पूजा विधि विधान से संपन्न होते रहता है। इस मंदिर में एक विशेषता है, जो भी भक्त लोग आता है, भक्तों का मनोकामना पूरा हो रहा है। जिसका संतान नहीं है, संतान का भाग्य भी दे रहा है भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी। इसीलिए भक्तों का, लोगों का जो सोच के आता है वो सब सफल हो रहा है। इसीलिए भक्त लोगों को एक विश्वास हुआ, बालाजी भगवान जगदलपुर का, बस्तर का एक छोटा तिरुमला जैसा सब मानता है। इसलिए सभी भक्त लोग आके भगवान को दर्शन कर रहा है। हमारा मंदिर में जैसा तिरुपति में जो विधि विधान से पूजा संपन्न हो रहा है, तिरुपति में वैकानस शास्त्र के अनुसार पूजा होता है, यहाँ पांचरात्रागम शास्त्र के अनुसार पूजा संपन्न हो रहा है। तिरुपति में जो सेवा है, सुबह सुप्रभात सेवा, वेद पारायण सेवा, सातुमरई सेवा, भालभोग वितरण, ये सब यहाँ मंदिर में संपन्न हो रहा है। शास्त्र के अनुसार नित्योत्सवम, पक्षोत्सवम, मासोत्सवम, अयनोत्सवम, संवत्सरोत्सवम, जो आगम शास्त्र बताया वो सब उत्सव यहाँ मंदिर में संपन्न हो रहा है। इस मंदिर में धनुर्मास उत्सव विशेष उत्सव संपन्न होता है। हर एकादशी के दिन पंचामृत से भगवान को अभिषेक होता है। हर मंगलवार के दिन अष्टदल पाद पद्मार्चना, हर शनिवार शाम को सहस्र दीपालंकरण सेवा, हर श्रवणा नक्षत्रम, हर महीना एक श्रवणा नक्षत्रम के दिन भगवान को श्रीनिवास कल्याणम संपन्न हो रहा है। नित्य कल्याणम भी, जो भी भक्त लोग संकल्प करता है कल्याणोत्सव करवाने के लिए, वो कल्याणोत्सव भी, नित्य कल्याणोत्सव भी संपन्न होता है यहाँ मंदिर में। हर साल वार्षिक ब्रह्मोत्सव जो संपन्न हो रहा है, इस साल 25वां वार्षिक महोत्सव ब्रह्मोत्सव हो रहा है। उसमें हर साल से ज़्यादा भक्त लोग शामिल होके भगवान को अपना श्रद्धा से जो देना चाहता है, भगवान सब कुछ हमको दे रहा है, इसीलिए भगवान को जो देना चाहता है वो सब देके हर दिन मंदिर का डेवलपमेंट हो रहा है। भगवान को पिछले साल संकल्प किया था 1 किलो सोना का कलश से अभिषेक करेंगे करके। जब संकल्पम स्ट्रांग रहता है, सही रहता है, धर्म रहता है, भगवान वो संकल्पम के लिए सफलता देता है। उसके लिए उदाहरण है हमारा सोना का कलश। पिछले साल संकल्प किया था 25वां वार्षिक ब्रह्मोत्सव में सोना कलश से अभिषेक करने के लिए। जगदलपुर का और आजू बाजू जो गांव है, रायपुर से, उड़ीसा से, आंध्रा, तेलंगाना से जो भी भक्त लोग हमारा मंदिर से संबंधी है, सब लोग अपना श्रद्धा के अनुसार सोना दिया गया। भगवान को इस साल 1 किलो सोना का कलश से भगवान को अभिषेक भी हुआ। जय श्रीमन्नारायण। बालाजी मंदिर के परिकल्पना के साथ ही इस दिशा में समाज के द्वारा किए गए प्रयास
बहुत ही सार्थक और फलदायी रहे हैं, जिसमें सभी समाजों का सहयोग हमेशा इस समाज को मिला है। और इस हमारे सनातन धर्म के उसमें सनातन धर्म रूपी आकाश के नीचे जितने भी हमारे समाज के लोग हैं, संप्रदाय के लोग हैं, सारे लोग हैं, बढ़ चढ़कर इस मंदिर के निर्माण में सहयोग दिया है। आज के तिथि में यह मंदिर बस्तर जिले में ही नहीं, संभाग में ही नहीं, पूरे प्रदेश में एक पुण्य स्थल बन चुका है। यहाँ पर सिर्फ आंध्र समाज के लोग ही नहीं, सारे समाज के, अन्य समाज के सारे लोग भी यहाँ पर आकर अपने इष्ट देवता की यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। यह हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। तो लगातार उत्तरोत्तर निरंतर लोगों के सहयोग से आज हम यह रजत वर्ष मना रहे हैं। इस रजत जयंती वर्ष में जो अपार भीड़ उमड़ रही है पूरे प्रदेश से, कोरबा से, रायपुर से, दुर्ग से एवं अन्य शहरों से भी आंध्र समाज के लोग एवं विभिन्न समाज के लोगों का इस महा उत्सव में शामिल होना हो रहा है। हम सभी लोगों के आभारी हैं और इस महा उत्सव में सम्मिलित होकर इसे सफल बना रहे हैं, इसके लिए हम सभी आभार व्यक्त करते हैं और बहुत अच्छी बात है। जय श्रीमन नारायण। यह अद्भुत क्षण है हम सभी के लिए। हम बालाजी मंदिर के 25वें वार्षिकोत्सव के साक्षी बन रहे हैं। आज सभी भक्तजनों से भी विनय आग्रह है, मनोहार है। आज हमारे लिए एक ऐसा स्वप्न जो हम सोचते थे कि कभी पूरा होगा नहीं होगा, स्वप्न पूरा होने का ऐसा आभास है। बंधु, इस 25वें वार्षिकोत्सव के लिए हमने 24वें वार्षिकोत्सव के साथ ही तैयारी शुरू की थी। लगातार बैठकें अग्रजों के, हमारे वरिष्ठों के साथ लगातार उनके साथ मार्गदर्शन और एक वृहद योजना बनाकर प्रचार प्रसार के लिए हमने कोशिश की। भक्तों को कम से कम परेशानियां हो और इस वृहद कार्यक्रम में वो लगातार भाग लेके भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करे, ऐसी कोशिश हमने की। यह विलक्षण क्षण है, भावनात्मक क्षण है कि हम भगवान बालाजी के 1999 में इसका जो निर्माण शुरू हुआ था और 2001 में इसका भव्य प्राण प्रतिष्ठा हुई। यह हमारे लिए सुखद संयोग है कि जिन्होंने प्राण प्रतिष्ठा की ऐसे प्रखंड विद्वान हमारे बीच में ये 25वां वार्षिकोत्सव करने के लिए भी यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप सबको 25वें वार्षिकोत्सव की पुनः हार्दिक बधाई और हृदय के अंतर्मन से सभी भक्तजनों का और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष इस कार्यक्रम में सहयोग करने वाले सभी का आभार व्यक्त करते हुए वाणी को विराम। नमस्कार। जय श्रीमन नारायण। गोविंदा गोविंदा। जगदलपुर शहर में बालाजी मंदिर का निर्माण भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की स्वयं की इच्छा थी। इसी के तहत समाज के सभी लोगों को जोड़ के हमारे भूदाता कुंडलराज जी से संपर्क किया। उन्होंने शहर जमीन देने का घोषणा किया और बहुत जल्द ही, कम 2 साल में ही मंदिर का निर्माण पूरा हुआ। उनका जमीन देना और मंदिर का निर्माण होना और भगवान की इच्छा ही मानता हूँ मैं। और विगत 25 वर्षों से मैं इस मंदिर में एक निर्माण इंजीनियर की हैसियत से काम कर रहा था। एक सिविल इंजीनियर मेरे को 37 साल हो गए यहाँ जगदलपुर में प्रैक्टिस करते हुए। मंदिर के निर्माण में इंजीनियर की हैसियत से काम किया। हमारे रामाचार्य जी प्रतिष्ठा करते थे मंदिरों का। उन्होंने इस मंदिर का भूमि पूजन शिलान्यास किया और उन्होंने ही प्राण प्रतिष्ठा किया था। आज हम 25वां साल जो मना रहे हैं उनके उपस्थिति में ही मना रहे हैं। वे यहाँ आकर पूजा संपन्न करवा रहे हैं और 25 वर्ष के लिए मेरे लिए गौरव की बात है कि मैं अभी इस मंदिर का अध्यक्ष हूँ और अध्यक्ष की हैसियत से काम कर रहा हूँ और सभी का सहयोग भरपूर मिल रहा है मेरे को। और सबके सहयोग के बिना तो ये उत्सव को सफल बनाना संभव नहीं था। बहुत ही अच्छे तरीके से संपन्न हो रहा है। सभी समाज, सभी समाज के लोग इसमें, संस्थाओं के लोग इसमें शामिल हुए हैं और बहुत अच्छे तरीके से ये कार्यक्रम को संपन्न किया जा रहा है और सहयोग भी बहुत मिल रहा है। और इस साल के वार्षिकोत्सव में हमने ये प्रयास किया है कि पूरे छत्तीसगढ़ से लोग यहाँ पहुँचे और सबको हमने आमंत्रित किया है। पहले दिन जो ललिता पारायण का पाठ हुआ था उसमें
माताजी अरुणा पेरी जी ने यहाँ पे कोटि पारायण का पाठ किया था। कोटि पारायण का पाठ किया था जिसमें उड़ीसा के 200 से अधिक महिलाएं उपस्थित हुई थी। दूसरे दिन शोभा यात्रा, भव्य शोभा यात्रा संपन्न हुआ यहाँ पे, जो शहर के लिए एक ऐतिहासिक बन गया है। इसके बाद तीसरे दिन हमने जो स्वर्ण कलश बनाया है, भगवान को समर्पित किया है, उस स्वर्ण कलश का पूजा हुआ था। और चौथे दिन कल भगवान एकादशी के उपलक्ष्य में अभिषेकम पूजा संपन्न हुआ और शाम को कल्याणम पूजा संपन्न हुआ। लोक कल्याण के लिए भगवान का कल्याणम पूजा हमेशा ये बार बार किया जाता है और ऐसी इच्छा है कि रहती है कि लोक कल्याण जो है इससे होता है। और मंदिर जो यहाँ स्थापना हुआ था, प्रतिष्ठित हुआ थे भगवान यहाँ पे, उसके तुरंत बाद छत्तीसगढ़ राज्य बना। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद से विकास की ऐसी गंगा मतलब इधर बही है पूरे प्रदेश में, क्षेत्र में, जिसको आप देख रहे हैं। एनएमडीसी का स्टील प्लांट भी जो है इस मंदिर के आने के बाद ही हुआ है। मैं तो ये मानता हूँ आगे चल के यह मंदिर दिव्य क्षेत्र बनेगा ये मंदिर, और बहुत विशाल रूप से ये लेगा, पूरे क्षेत्र के लिए बड़े गौरव की बात होगी। जब ये मंदिर हम शुरू किया था, शुरू में हमको बहुत कठिनाई था पूरा उसका ये करने के लिए। हम लोग हर तरह से वो करके, जितना कमेटी वाले हैं सब लोग कंट्रीब्यूट करके पैसा भी करके मंदिर चलाते थे, और धीरे धीरे मंदिर का इनकम बढ़ते गया। हर समाज का व्यक्ति जो है ये अपना मंदिर मानने लगे, और हर व्यक्ति जो है, अभी आज कोई समाज ऐसा नहीं है, कोई समाज इस मंदिर से जुड़ा नहीं। वो सभी लोग जो है सभी ये मान के चलते हैं ये अपना मंदिर है, अपन को करना है करके वैसा आगे बढ़ाते जा रहे हैं। हम आज का स्थिति में इतना वो है, और इसको हम अलवार भी वो जोड़ के हम इसको भव्य मंदिर बनाने का संकल्प है और आगे बढ़ाते जाएंगे। मैं पेशे का वकील हूँ। आज से 25 साल पहले 1997 में मैं आंध्रा एसोसिएशन से जुड़ा था और एक बालाजी मंदिर निर्माण करने की आयोजन किए थे। तब मैंने शहर के प्रमुख लोगों को इकट्ठा कर रेलवे राम मंदिर में मीटिंग किया। मीटिंग के बाद एक वेंकटेश्वर स्वामी जी का मंदिर बनाने का संकल्प लिया, लेकिन आंध्रा एसोसिएशन के पास ना किसी प्रकार का आर्थिक आयोजन था, ना जमीन था। फिर हम सब मिलके श्री कोंडलराव साहब के यहाँ गए। कोंडलराव साहब ने बोले कि हम बालाजी मंदिर निर्माण करेंगे, तो उन्होंने वेंकटेश्वर स्वामी के लिए जमीन देने का ऐलान किया। उनके मार्गदर्शन पर हमको ये जमीन प्राप्त हुआ। हमारे स्वर्गीय त्रिनाथ राव जी, बीपी राव साहब, दंतेश्वर राव पंडित, ये जीएस रामम, ये सभी हमारे संस्थापक सदस्य थे। इनके मार्गदर्शन पर इतना भव्य मंदिर निर्माण हुआ है। इस भव्य मंदिर का सहयोग मंदिर कमेटी के साथ पूरे छत्तीसगढ़ वासियों और भारत के निवासियों का योगदान रहा और इतना बड़ा भव्य मंदिर निर्माण हुआ। उस मंदिर निर्माण में तन मन धन से सभी श्रद्धालुओं ने अपना सहयोग अर्पित किया। हमने सपने में भी नहीं सोचा कि इतना बड़ा भव्य मंदिर निर्माण होकर आज यहाँ रजत जयंती महोत्सव मनाएंगे। हमें अद्भुत लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आने वाले पीढ़ी के लिए ये बहुत बड़ा मंदिर का सेवा का कार्य होगा। बालाजी मंदिर के निर्माण के समय से मेरा आना जाना यहाँ लगा रहा है। हमारे जीजाजी डीएच रामम जी इसमें सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे। उनके साथ निर्माण का प्रति स्टेज को मेरा देखना हुआ है और उसके साथ प्रथम वर्ष में
2001 में जब इसका वो हुआ, उस समय में हम लोग यहाँ के ऊपर का कलश को जिधर वो है, कलश को चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रतिवर्ष मेरे द्वारा, मेरे परिवार के द्वारा आकर यहाँ पे सेवा कार्यक्रम करते हैं और इसी तरह 25 साल हो गए। इसका मुझे बहुत आनंद है और भी अच्छा उत्तरोत्तर उन्नति हो। बिल्कुल निश्चित रूप से जो भगवान की सेवा जब से शुरू की है, उनके कृपा के हम सब पात्र बने हैं। एक सामान्य से काम करते हुए आज हम बहुत मतलब भगवान की कृपा से अच्छा सुख समृद्धि संपत्ति को भी प्राप्त कर रहे हैं और भगवान के प्रति आस्था भी बढ़ रही है। और हमारे जो परिवार ही नहीं बल्कि पूरी जो हमारे समाज के सभी लोग इस आयोजन को में शामिल होते हुए भगवान के आध्यात्म की ओर जो उनका जो रुझान बढ़ते जा रहा है, तो आने वाले जो हमारे लोग आएंगे, जो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, वो जो है भक्तिमय का वातावरण के साथ साथ एक बहुत ही अच्छे सोच के साथ समाज में एक अच्छा रूप लोग अग्रसर होंगे। हम सत्य सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं और निश्चित तौर पर हमारी यह धारणा है कि अगर हम भगवान के शरण में जाते हैं तो हमारी सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। और निश्चित तौर पर हम देखते आए हैं कि जब से हम लोगों ने इस मंदिर का यहाँ निर्माण किया हुआ है और लगातार भगवान की सेवा भी कर रहे हैं, मंदिर में लगे हुए हैं, और आप बिल्कुल महसूस कर सकते हैं कि एक समय था आज से 25 वर्ष पूर्व जब शहर का एक कोना हुआ करता था यह क्षेत्र, लोग बोलने भी लगे थे कि मंदिर शहर से थोड़ी दूर है, लेकिन आज परिस्थितियां ऐसी हैं कि आज शहर का हृदय स्थल कहा जा सकता है इस मंदिर को, क्योंकि इस मंदिर के आने के बाद शहर के जो पश्चिमी छोर में बहुत ही अच्छी प्रगति हुई है और सिर्फ व्यक्तिगत नहीं है, शहर के लिए भी और क्षेत्र के लिए भी एक अच्छी बात। गोविंदा गोविंदा, बस्तर बालाजी भगवान की जय। सबसे पहली बात तो यहाँ का जो 7 दिन का जो कार्यक्रम हुआ, यहाँ के कमेटी मेंबर बहुत अच्छे से कार्यकर्ता के रूप में या जितने भी कार्यकर्ता जो भी है सब अच्छे से व्यवस्था किए थे और सभी दिन भक्तजनों का भीड़ और ये देख के बहुत प्रशंसता हुई और यहाँ का जो कार्यक्रम, यहाँ का जो सेवा बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ और यहाँ पर जो भी है भोजन जो भी है, जो भी नाश्ता वास्ता जो भी बहुत अच्छे से कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किए हैं और जितने भी भक्तजन आए हैं, बाहर से भी बहुत लोग आए हैं और इस भगवान का ये प्रसिद्धता है कि जो भी अपन सोचेंगे मन में, और इतना बहुत ये है कि इस भगवान का अपन अच्छे से पूजा करने से ही बहुत अच्छा देखभाल अपन करते हैं और भक्तजन की बहुत भीड़ है इस साल और 25वीं रजत उत्सव में बहुत अलग अलग कार्यक्रम की प्रस्तुति की है और ये देख के जितने भी पब्लिक है सभी को बहुत अच्छा लगा और कुछ अलग देखने का महसूस हुआ और बहुत अच्छे से कार्यक्रम हुआ है। जितने भी कार्यकर्ता, जितने भी कमेटी मेंबर हैं, उनको सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। इतने अच्छे कार्यक्रम करने के बावजूद भक्तजन का जो भीड़ है उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत टाइम लगता है और इतने कर्मचारी लगे हैं इसके लिए और बहुत अच्छे से कार्यक्रम हो रहा है। मैं इसको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कमेटी मेंबर और कार्यकर्ता लोगों को, सबको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय बालाजी, जय बस्तर बालाजी भगवान की। गोविंदा गोविंदा। 26 जनवरी 1997 को बस्तर डिस्ट्रिक्ट आंध्र एसोसिएशन जगदलपुर का विधिवत चुनाव हुआ। उस दिन श्री बालाजी टेम्पल कंस्ट्रक्शन कमेटी का भी गठन किया गया। समाज के विधिवत अध्यक्ष एम प्रभाकर राव नायडू थे और बालाजी टेम्पल कंस्ट्रक्शन कमेटी के चेयरमैन इस भारतीय स्टेट बैंक के रिटायर्ड रीजनल मैनेजर बी परमेश्वर राव थे। हम लोगों ने समाज के साथ रहते हुए बालाजी टेम्पल कंस्ट्रक्शन कमेटी के सारे सदस्य 2 साल आंध्र प्रदेश एवं दक्षिण भारत में बड़े बड़े मंदिरों का भ्रमण किए। भ्रमण करने के बाद सभी के मन में मंदिर निर्माण का एक नक्शा तैयार हुआ। तिरुपति भी गए, तिरुपति हमेशा जाते हैं, फिर भी सब ने मिलकर एक
कल्पना की, कल्पना को एक साकार रूप में उतारे। साकार रूप में उतारने के बाद वर्ष 1998 में यहाँ पर बसंत पंचमी के दिन भूमि पूजन किया गया। भूमि पूजन करने के बाद संघ की स्थापना की गई और 2 साल में बालाजी टेम्पल का विधिवत निर्माण संपन्न हो गया। और 2001 में भीष्म एकादशी के दिन यहाँ भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी जी की प्राण प्रतिष्ठा बसंत पंचमी से चालू करते हुए भीष्म एकादशी के दिन पूर्ण हुआ। उस वक्त यहाँ आज जैसे रजत वर्ष में भंडारा चल रहा है, वैसे प्रथम वर्ष जब भीष्म एकादशी के दिन प्राण प्रतिष्ठा हुआ और भंडारा हुआ तो लगभग 1,25,000 भक्तों ने यहाँ पर भंडारा में प्रसाद ग्रहण किए। उसकी गणना हमने, जो भक्त हमको 1.5 से 2 लाख केला प्रसाद में वितरण करने के लिए दिए थे, हर भक्त को भोजन में हमने 1-1 केला दिए। उस केला का जब हमने गणना किए तो तब हमें ये संभावना हुई कि यहाँ लगभग 1,25,000 से अधिक भक्तों ने भोजन किया, क्योंकि उतना पत्तलों का भी यहाँ पर व्यवस्था लगातार किया गया। और शहर के सारे भक्त जो सब्जी मंडी वाले हैं, जितनी भी सब्जी उस दिन जगदलपुर सब्जी मंडी में था, सारा सब्जी उनके यहाँ गाड़ियों में आया तो वो लगातार यहाँ भेजते गए। और भक्तों ने चावल भी वैसे ही दिया। और भंडारा के लिए पूरे शहर के और आसपास के राज्यों के जो भक्त आए उन्होंने अपना अंशदान दिया, जिससे उस दिन महाभंडारा बहुत ही भव्य रूप से संपन्न हुआ। इस 25 वर्षों में मंदिर में लगातार विकास के कार्य होते रहे हैं। कल्याण मंडपम का निर्माण, मैं जब अध्यक्ष रहा बालाजी टेम्पल कंस्ट्रक्शन कमेटी का, तो बालाजी मंदिर से लगा हुआ श्रीनिवास कल्याण मंडप का निर्माण हुआ, प्रारंभ हुआ। उसका चिन्ह जयर स्वामी जी ने संघ स्थापन किए थे और मेरे कार्यकाल में निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। मैं जब यहाँ पर टेम्पल कमेटी का चेयरमैन रहा हूँ तो पहली बार भगवान को वज्र मुकुट तैयार किया गया जो अमेरिकन डायमंड्स से था। उसके बाद जो हमारे नेक्स्ट अध्यक्षों के द्वारा भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी जी का सारा जो कवच है वज्र कवच बनाए, जिसमें अमेरिकन डायमंड से बना हुआ गोल्डन पॉलिश का है। मैं जब यहाँ अध्यक्ष रहा हूँ उस वक्त मेरे कार्यकाल में 2 जमीनों का रजिस्ट्रेशन भी हुआ। एक दानदाता ने अपने जमीन का रजिस्ट्री ने घोषणा किए थे, उस जमीन का मैंने रजिस्ट्री करवाया, जो इस टेम्पल ट्रस्ट के लिए बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। लगातार इस 25 सालों में आगे बढ़ता गया और मैं पिछले कार्यकाल में उपाध्यक्ष पद पर रहते हुए एक संकल्प सभी ट्रस्टियों से चर्चा करके लिया था कि उस रजत वर्ष में स्वर्ण कलश स्वामी जी के श्री चरणों में समर्पित करना है। सभी ट्रस्टियों के सहयोग से मैंने स्वर्ण कलश का संकल्प को स्वामी जी के श्री चरणों में रखते हुए उस दिन चालू किया और पिछले साल वार्षिक उत्सव में स्वर्ण कलश के लिए आज जो स्वर्ण कलश बना है उससे आधे से अधिक मात्रा में सोना भक्तों के द्वारा दिया गया। लगभग 652 ग्राम सोना स्वर्ण कलश के लिए उस 7 दिन के अंदर में भक्तों के द्वारा घोषणा की गई और लगातार इस वर्ष में भक्तों के द्वारा सोना देते हुए इस साल स्वर्ण कलश स्वामी जी के श्री चरणों में समर्पित किया गया। इस वर्ष भी वार्षिक उत्सव में स्वामी जी के श्री चरणों में ट्रस्टियों की सहमति से षटगोपों स्वर्ण का बनना है, ये निर्णय लिया गया। उस षटगोपों का भी घोषणा की गई, जिससे मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं सबसे पहले उस षटगोपों का भी प्रथम दाता बना और 11 ग्राम की घोषणा मैंने की। स्वर्ण कलश में भी मुझे स्वामी जी का अनुपम कृपा रहा कि स्वर्ण कलश के लिए भी प्रथम घोषणा मेरे नाम से हुआ, जो मेरे इस जीवन का बहुत ही अमूल्य धरोहर संपत्ति के रूप में मैं अपने जीवन में इसको मानूंगा। और आज ये रजत वर्ष बहुत ही भव्य रूप से 7 दिनों में चला है। पहले दिन भव्य शोभा यात्रा हुआ, उसमें लगभग 5000 भक्तों ने भाग लिया।
दूसरे दिन स्वर्ण कलश का विधिवत पूजा हुआ, जिसमें जितने भी दानदाता थे स्वर्ण कलश का, उनसे विधिवत पूजा करवाया गया। और भीष्म एकादशी के दिन स्वर्ण कलश से प्रधान आचार्य जो आंध्र प्रदेश से आए हुए थे श्री रामाचार्य, जिन्होंने इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में बहुत बड़ा उनका योगदान रहा है, संघ के स्थापन में रहा, भूमि पूजन में रहा, उनके कर कमलों से भगवान श्री श्री वेंकटेश्वर स्वामी, जिसको आज हम बस्तर बालाजी के नाम से जानते हैं, चारों उनके कर कमलों से यहाँ स्वर्ण कलश से प्रथम अभिषेक प्रारंभ हुआ। तत्पश्चात रजत कलश, काशी कलश और लक्ष्मी कलश से करीब 1000 लीटर दूध, दही, शहद, शक्कर और सुगंधित द्रव्य से भीष्म एकादशी के दिन बहुत ही भव्य अभिषेक कार्यक्रम हुआ। और लगातार कार्यक्रम आज अंतिम दिन यहाँ लगभग अभी ट्रस्ट के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि लगभग 25,000 भक्तों को आज भंडारा करवाया जाएगा। अभी तक लगभग करीब 12,000 भक्तों के द्वारा भोजन ग्रहण किया जा चुका है। लगभग अभी दोपहर का 1:30 बज रहा है और ये भंडारा लगातार चलता रहेगा। और सभी भक्त जो भी आएंगे, सारे भक्तों को आज इस भंडारा में भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी जी बस्तर बालाजी का प्रसाद उनको परोसा जाएगा। गोविंदा 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 गोविंदा। मैं मध्य सप्तगिरी कोषाध्यक्ष बालाजी मंदिर जगदलपुर। आज मैं ये 25वां वार्षिक उत्सव 26/1/2026 से 1/2/2026 तक मनाया जा रहा है। बहुत ही भव्य रूप से मनाया जा रहा है। भक्तों की बहुत भीड़ लगी हुई है, बहुत अच्छा लग रहा है। हमें तिरुपति का माहौल पूरा दिख रहा है। आगे चलकर ये एक बहुत बड़ा पुण्य क्षेत्र बनेगा। बहुत ही भव्य रूप से मनाया जा रहा है। भक्तों ने पहले जितने भी 24 साल से आ रहे थे उससे ज़्यादा भक्तों की भीड़ इस साल बहुत दिख रही है। और हम खुशकिस्मत हैं कि इस मंदिर में मैं कोषाध्यक्ष हूँ और हमारे बाबूजी पहले कोषाध्यक्ष थे। उनके जाने के बाद मुझे ये उपलब्धि मिली। बहुत बहुत खुशकिस्मत माना जाता हूँ मैं अपने लाइफ में। बहुत ही अच्छा लग रहा है। और वो 22 मेंबर्स जब 2000 में ये भव्य मंदिर मनाने के लिए बहुत ही मेहनत किए, कड़ी मेहनत किए हैं। और उस चीज़ को आज हम सब जगदलपुर वासियों ने ये बालाजी मंदिर प्राप्त किया है और हमको बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। इसलिए अभी इतने भक्त लोग को अपन देख रहे हैं और यहाँ भोजन व्यवस्था जो भी है, वॉलंटियर्स हैं, बहुत ही कड़ी मेहनत से ये जो 25वां वार्षिक उत्सव है बहुत ही मेहनत से हो रहा है। बाकी इतने भक्त अभी तक देखा नहीं हूँ मैं। आज इस 25वां वार्षिक उत्सव में भक्त बहुत ज़्यादा हैं। కొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద ఆపద్ముక్రోడ అనాథ रक्षक गोविंद गोविंद। मेरा नाम के श्रीनिवास राव सोनी है। ये मेरे पापा यहाँ के पहले ट्रस्टी थे जिन्होंने भूमि पूजन से लेके प्राण प्रतिष्ठा तक का पूरा सेवा दिया था। उसके बाद उन्होंने उनके देहांत के उपरांत मुझे यहाँ ट्रस्टी में लिया गया है। मैंने भी 1999 से यहाँ पे जुड़ा हुआ हूँ। मैंने भूमि पूजन देखा है, मैंने प्राण प्रतिष्ठा देखा, उसके बाद मैंने भी पूरा सेवा दिया हुआ है। तत्पश्चात आज 25वां वार्षिक उत्सव है। बहुत भव्य हुआ, बहुत ही आनंदमय था, जो बहुत अद्भुत था। तो हमें बहुत ही आनंद मिला है। गोविंदा गोविंदा। आज से 27 साल पहले इस मंदिर के भूमि पूजन में मेरे हाथों द्वारा इसका नारियल फोड़ा गया था। उस समय इस क्षेत्र को की भव्यता के बारे में बड़े पंडित जी के द्वारा ये घोषणा कर दी गई थी कि ये मंदिर जो है भविष्य में भव्य मंदिर बनेगा। और आज 25 साल होने के बाद आज ये लग रहा है कि इन 25 सालों में मंदिर का विकास और स्वामी जी की सेवा लोगों के मनों में कितने भव्य रूप से जुड़ गई है। लोगों ने आज इस
भव्यता को देखकर लोगों के मनों में हर्ष और उल्लास है। स्वामी जी की एक कृपा है, हमेशा वैसी बनाए रहे और आगे उन्नति के रास्ते पर इस मंदिर के कार्यक्रम को आगे बढ़ाए और आप सब लोगों का ऐसे ही स्नेह और हमें प्राप्त होते रहे, जिससे मंदिर की कायाकल्प आगे बढ़ते रहे, स्वामी जी की कीर्ति और बढ़े। और आप सब लोगों को इस 25 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जय बालाजी। जय श्रीमन नारायण। भगवत कृपा से माँ दंतेश्वरी मंदिर, माँ दंतेश्वरी जी की असीम आशीर्वाद से लगभग 39,114 वर्ग किलोमीटर में फैला बस्तर का यह सुंदर भूभाग, जो काकतीय राजवंश की राजधानी रही है, उस जगदलपुर शहर में भगवान बालाजी के मंदिर का रजतोत्सव मनाया जा रहा है। इस संदर्भ में मैं कुछ अपने संस्मरण सुनाना चाहता हूं। आज से लगभग 25 वर्ष पूर्व इस मंदिर का निर्माण हुआ था और उस वक्त मेरे पिताजी श्री बी परमेश्वर राव जी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में क्षेत्रीय प्रबंधक के पद पर कार्यरत रहे। मंदिर कमेटी के सम्मानीय श्री कुंडल राव जी, श्री हनुमंत राव जी, श्री राजेंद्र प्रसाद जी, श्री वासुदेव राव जी और स्वामी के अनन्य भक्त कई सदस्य आए और उनसे मंदिर निर्माण में सहयोग देने का वचन लिया। चूंकि मेरे पिताश्री बी परमेश्वर राव जी भगवान वेंकटेश्वर स्वामी जी के अनन्य भक्त रहे हैं, उन्होंने तत्काल इसे स्वीकार किया और 98 में रिटायर होने के पश्चात उन्होंने अधिकतर समय सुबह लगभग 9 बजे से रात्रि लगभग 10 बजे तक मंदिर पे समर्पित होकर निर्माण के समय भरपूर सहयोग देने का प्रयास किया। उन्हीं के साथ साथ उस वक्त के मंदिर कमेटी के सदस्य एवं हमारे आंध्रा समाज के बहुत सारे भक्तजन के साथ साथ शहर के दूसरे लोग जो स्वामी जी से जुड़े हुए थे, वे सब उन लोगों ने पूरी मेहनत से इस मंदिर के निर्माण में भाग लिया। फलस्वरूप 2 वर्षों के अंदर यह मंदिर बनकर तैयार हुआ। आश्चर्यजनक अद्भुत इसका नजारा था। ईशान कोण में दलपत सागर, जो कि मंदिर निर्माण में अभूतपूर्व दृश्य बनाता था और वास्तु के हिसाब से भी मंदिर में यह एक शुभ संकेत था। सभी मंदिर कमेटी के सदस्य दिन रात सेवा में लगे रहे और 2001 में मंदिर पूर्ण हुआ। आज आश्चर्य होता है कि इस निर्माण के बाद से 25 वर्ष रजत जयंती का वर्ष चल रहा है और इसमें सभी भक्तजन पूरे जोर शोर से भाग ले रहे हैं। शहर के लोग, अन्य समाज के लोग के अलावा बस्तर के बाहर से भी बिलासपुर, कोरबा, रायपुर, नवरंगपुर, जयपुर से अनन्य भक्त यहाँ पर आकर के बालाजी भगवान की सेवा में लगे रहे। अभूतपूर्व ढंग से यह रजत जयंती 7 दिनों तक चलता रहा और सभी भक्तों ने इसमें खूब भाग लिया। भगवान की कृपा एवं पिताजी के आशीर्वाद से मैं PS राम कुमार इस मंदिर का स्थायी ट्रस्टी हूँ और यथासंभव भगवान की सेवा में उनकी ही कृपा से मैं लगा हुआ हूँ। आप सभी सुधीजनों को बालाजी मंदिर के रजत जयंती के 25वें वर्ष में हार्दिक शुभकामनाएं एवं आप सभी को भगवान की असीम कृपा हमेशा मिलती रहे। धन्यवाद।
जय श्रीमन नारायणा। मैं महेश तेनेटी। इस 25वें वार्षिकोत्सव के मौके पर हमारी किस्मत आप बोल लीजिए कि भगवान बालाजी के इस मंदिर के ट्रस्टी में और कमेटी मेंबर बनने का हमें मौका भी मिला और इस कमेटी को जानने का पास से मौका मिला। इस मंदिर के इतिहास के बारे में हमको जानने का मौका मिला। मैं अगर व्यक्तिगत तौर पे बताऊं तो यहाँ शिलान्यास से पहले और शिलान्यास के बाद जो भी कार्य हुआ है उसमें कई ऐसे लोग हैं जो अभी ट्रस्टी में हैं, ग्रुप में हैं, और कुछ ऐसे हैं जो अभी हमारे बीच में नहीं हैं, और कई ऐसे लोग हैं जो खोए हुए हैं। मतलब ऐसे लोग जो पर्दे के पीछे रहे, जिन्होंने कार्य शुरू किया, वो समाज के हैं, समाज के बाहर के भी हैं, पर उनका जो योगदान है वो कभी भुलाया नहीं जा सकता, भले उनका नाम कहीं नहीं आता। क्योंकि जाकर ज़मीन के लिए बात करने से लेकर शहर शहर अपने खर्चे पे घूमकर इस मंदिर के लिए डोनेशंस लाना, इस मंदिर को भव्य रूप से तैयार करना, देखते देखते जब शिलान्यास हुआ और ये भगवान का जब मंदिर बन रहा था तो हम प्रत्यक्ष साक्षी हैं। तब हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे कि लोगों ने अपनी हैसियत से, आप बोलना चाहिए अपने बखत से ज़्यादा, जो व्यक्ति 3 रुपए दे सकता है तो 300 रुपए दान दिए, जिसने 3000 रुपए दे सकते तो 30,000 रुपए तक दान दिया है। ये भगवान की लीला है कि जब भी ऐसा कभी होता है कि भगवान को अपने लिए कोई कार्य कराना होता है तो दानदाताओं की कभी कमी नहीं पड़ती। यही कारण है कि यह मंदिर इतना भव्य बन सका, और इस मंदिर के भव्य बनने में स्थानीय लोगों के, समाज के, आंध्र समाज के लोगों के अलावा स्थानीय लोग, आंध्र समाज के लोग, शहर के लोग, फिर राज्य के कई लोग और बाहर के भी, बाहर के राज्य और कई विदेशी भी जो कि NRIs हैं, उनका भी योगदान हमको यहाँ मिला है, जिसके कारण ये मंदिर इतना भव्य बना है। और 25 वर्ष का जो हमारा ये कार्यक्रम था, ये पहले से तय था, चूंकि ये 25वां वर्ष कंप्लीट हुआ है, जो कि एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है बोलना चाहिए, या फिर एक मील का पत्थर है कि 25 वर्ष सक्सेसफुली हमने कंप्लीट किए। तो इसके लिए तैयारी शुरू से इतनी सुव्यवस्थित ढंग से की गई कि आज हम आखिरी दिन पे हैं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आखिरी दिन पे हूँ, और आज हमने विशाल भंडारा किया है जिसमें कहीं पे भी कोई अव्यवस्था नहीं हुई। भीड़ अभी भी आ रही है। हमने सुबह लगभग 11:30 बजे भंडारा चालू किया, भीड़ अभी भी आ रही है, और हमारी उम्मीद है कि ये रात को 10 बजे तक ये भंडारा चलेगा और खाने की कमी नहीं होगी। करीब 1-2 महीना से लगातार सभी कार्यकर्ता और ट्रस्टी जो है बढ़ चढ़ कर काम किए हैं। 25वें वर्षगांठ में जगदलपुर वासियों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। गोविंदा गोविंदा। जय श्रीमन नारायण। मैं रजनीश शुक्ला बालाजी मंदिर में इस समय वर्तमान में पुजारी हूँ। 2012 में मुझको टी कुंडल राव जी यहाँ अर्चना करने के लिए बुलाए। मुझको तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पहुँच करके, क्योंकि मैं तो उत्तर भारत का हूँ। उत्तर भारत से दक्षिण भारत के मंदिर में आकर के भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की पूजा करना हमारा सौभाग्य है। या ये कहे कि भगवान बुलाए, इसलिए मैं अर्चना कर रहा हूँ। यहाँ रह करके हमको अच्छा लगा। यहाँ की कमेटी भी अच्छी है, क्योंकि हम लोगों को कभी परेशान नहीं किया गया। हम लोगों को अच्छी देखरेख की गई यहाँ, और अभी हम लोगों को ध्यान दिया जाता है, ऐसी बात नहीं है। वार्षिकोत्सव बहुत होते रहे। मैं 12 वार्षिकोत्सव कर चुका हूँ अभी तक। मैं पुष्कर से हूँ। जब 12वां वार्षिकोत्सव था तब से मैं यहाँ कर रहा हूँ, तब से हो रहा है। लेकिन इस बार जो वार्षिकोत्सव हुआ वो वार्षिकोत्सव देखने लायक था। सारी व्यवस्थाएं भी अच्छी हुई। उसके अलावा इस बार जो साज सज्जा रही और भगवान का दिव्यतम जो स्वरूप हमको दिखाई दिया, वो माने कि सराहनीय है, अच्छा है। बाकी तो भगवान की इच्छा है, भगवान जब तक रखें तब तक हम अपना सौभाग्य समझेंगे कि भगवान हमको यहाँ सेवा में रख रहे हैं। बाकी जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। मैं नरसिंह राव, दलपत सागर वार्ड से पार्षद और भारतीय जनता पार्टी का जिला का उपाध्यक्ष। आज हम बालाजी मंदिर में 25वां रजत उत्सव मना रहे हैं, और ये हम सब के लिए गर्व का
बात है और गर्व का विषय है कि हम शानदार इस आयोजन में शामिल हुए हैं और पूरा बस्तर क्षेत्र इस कार्यक्रम से अभिभूत है और पूरा छत्तीसगढ़ प्रदेश इस कार्यक्रम में लगभग हर क्षेत्र से यहाँ पे श्रद्धालु और भक्तजन पधारे हैं और छत्तीसगढ़ के अलावा राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक भी इस स्थान पर लगातार आते रहते हैं। हम सब के लिए सौभाग्य का बात है और जब से स्वामी जी का इस स्थान पे निवास हुआ है, ये स्थापना हुई है, तब से ये संपूर्ण क्षेत्र एक आध्यात्मिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्षेत्र बन चुका है। जगदलपुर एक धर्म नगरी के रूप में विकसित हुई है। माँ दंतेश्वरी, माता मावली का यहाँ पे आशीर्वाद है और आज यहाँ एक महाभंडारा का आयोजन हुआ। ये भंडारा अपने आप में अद्भुत और दिव्य है क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर लगभग 30 से 35 हजार भक्तों का आज यहाँ पे भोजन प्रसाद ग्रहण करेंगे और ये अपने आप में अद्भुत और दिव्य महाभंडारा है। इतना बड़ा भंडारा भगवान की कृपा से इसी मंदिर में संपन्न होता है और हम सब उस महाप्रभु भगवान श्री बालाजी को धन्यवाद देते हैं और उनको कोटि कोटि नमन करते हैं कि आपका आशीर्वाद और आपका कृपा न केवल बस्तर अपितु न केवल छत्तीसगढ़, संपूर्ण भारतवर्ष में आपका आशीर्वाद बना रहे। शांति, सुख और समृद्धि इस क्षेत्र में हमारे देश में आए और अधिक से अधिक जो युवा हैं धर्म की ओर, अपनी संस्कृति की ओर आए और ऐसे दिव्य आयोजनों में अपनी भूमिका निभाएं, ऐसा ही मेरा मानना है। जय श्रीमन नारायण, गोविंदा गोविंदा। जय श्रीमन नारायण। मेरा नाम विशाल राव और मैं जगदलपुर से ही हूँ। हमारा परिवार पूरे लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं और हमारी मदर पहले से यहाँ से जुड़े हुए थे, उनके साथ साथ हम जुड़े हुए हैं। हर चीज में सहभागिता है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भगवान बालाजी की सेवा में हम लोग समर्पित हैं और हम अपने बड़ों से यही सीख रहे हैं कि आने वाले नेक्स्ट जनरेशन में हमें जो भी दायित्व दिया जाएगा वो बराबर हम उसको परिपूर्ण करेंगे। और युवा होने के नाते हम तो चाहते हैं कि हमारे सामाजिक सर्व समाज सब इसमें जुड़ा रहे और इस तरह के कार्यक्रम में हमें ये सीखने में, हमारे संस्कारों को बचाने में अभी तक का हमें इनसे जो हमसे मिल सक रहा है, जो चीज़ हम इनसे सीख सक रहे हैं, वो पूरा चीज को निर्वहन आने वाले समय में स्वामी जी की शरण के लिए हम हमेशा समर्पित रहेंगे। इन्हीं के साथ आज इस 25 वर्ष के पूर्ण होने पर हमें बहुत हर्ष और अत्यधिक खुशी महसूस होती है कि हम आगे भी इस तरह के कार्यक्रम में सहभागी रहें और जितनी सेवा हो सके उससे ज़्यादा हम करते रहें। अधिकतर ये होता है कि हम तिरुपति दर्शन में जा नहीं पाते हैं, तो हम यहीं पे ही बस्तर में तिरुपति बालाजी के दर्शन कर सकें। इन्हीं के साथ हम लोगों ने कल्याण मंडपम के लिए जो हमने डोनेशन दिए थे और डीएच रामम जी, जो हमारे स्वर्गीय डीएफ रामम जी थे, उन्होंने भी हमें इस ओर आकर्षित करवाया और हमें से परिचित करवाया और हम लोगों ने रथ के लिए भी डोनेशन दिया है और मैक्सिमम हर चीज में जहाँ हमारी उपस्थिति है हमारी माता के द्वारा वो प्रदान की गई है, आगे भी हम देते रहेंगे। इन्हीं बातों के साथ पुनः बहुत बहुत बधाई। जय श्रीमन नारायण। गोविंदा गोविंदा। मेरा नाम आदर्श राव है, मेरे पापा का नाम जी वेंकट राव है। उनका होने की वजह से आज यहाँ मुझे कुछ बोलने के लिए मौका मिला है। आज बालाजी मंदिर के 25वां वर्ष पूर्ण होने के कारण आज हमें यहाँ पर सेवा करने का कुछ अच्छा मौका मिल रहा है। बस इसी तरह हम मंदिर का सेवा करें और भगवान श्री बालाजी के आशीर्वाद से शक्ति प्रदान हुए हमें और शक्ति भक्ति और बुद्धि प्रदान हो। बस ये बात। गोविंदा गोविंद గోవిందా గోవిందా. ఛత్తీస్గఢ్లో జగదల్పూర్లో రజిత ఉత్సవాలు జరుగుతున్నాయి. వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో చాలా ఘనంగా జరిగాయి. 7 రోజుల పాటు ఈ కార్యక్రమాలన్నీ కూడా చాలా చక్కగా జరిగాయి. కన్నులకి చాలా నింపుగా అనిపించింది. అలానే మా నాన్నగారు ఇక్కడ ట్రెజరర్ గా వర్క్ చేశారు.
ఇప్పుడు మా అన్నయ్య గారు చేస్తున్నారు. వాళ్ళ అమ్మాయిని కావడం నాకు నేను చాలా గర్వంగా భావిస్తున్నాను. అలానే నేను యూట్యూబ్లో 2-3 వీడియోస్ షేర్ చేస్తాను. ఎక్కడైనా కూడా మీతో నేను షేర్ చేస్తాను ఇక జరిగే కార్యక్రమాలన్నీ కూడా. మేము ఆంధ్రాలో ఉండేవాళ్ళం అండి. మా మాయ గారు ఇక్కడ ఉండడం వల్ల మేము ఇక్కడికి వచ్చాము. చాలా వచ్చినందుకు మేము చాలా అదృష్టవంతులుగా భావిస్తున్నాము. చాలా ఘనంగా వేడుకలు జరుగుతుంటాయి ప్రతి సంవత్సరం. ఈ సంవత్సరం 7 రోజుల పాటు చాలా ఆనంద ఉత్సాహాలతో చక్కగా జరిపేశారు కార్యక్రమాలు. కమిటీ సభ్యులు కూడా చాలా యాక్టివ్గా వర్క్ చేసి మరింత దేవాలయానికి ఒక మంచి పేరు తీసుకొచ్చారు. చాలా ఘనంగా జరిగింది. అన్ని కార్యక్రమాలు కూడా చాలా విజయవంతంగా పూర్తి చేశారు. రోజు కూడా 3 పూటలు కూడా చక్కగా అన్నదానం పెట్టించారు. అలానే ప్రతిరోజు చక్కగా కార్యక్రమాలు అన్ని కూడా చేశారు. అంటే ఒకరోజు భక్తులకి ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా అన్ని విషయాల్లోనూ అన్నదాన కార్యక్రమం కానీ ప్రసాద వితరణ కానీ ప్రతి కార్యక్రమం కూడా చాలా చాకచక్యంగా ఎంతో ఓర్పుగా జరిపించారు. ఇది ప్రతి సంవత్సరం ఇలాగే ఇంతకంటే ఇంకా చక్కగా జరగాలి వేడుకలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. ఆ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆశీర్వాదం మనందరిపైన ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. इन 25 वर्षों में लोगों के जीवन में बड़ा ही आध्यात्मिक बदलाव आया है। इन वर्षों में व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इन सब देखते हुए लोग सनातन धर्म के प्रति जानकारियां कम मिलना, मंदिर कम जाना एवं अपने भारतीय संस्कृति के प्रति जागरूकता कम होना एवं बड़े बूढ़ों के न्यूक्लियर फैमिली होने के बाद बड़े बूढ़ों दादा नानी के संपर्क कम होने के कारण लोगों के अपने सनातन धर्म की संस्कृति के बारे में नॉलेज कम होना, पुरानी पीढ़ियों से कम्युनिकेशन कम होने के कारण उनसे सांस्कृतिक बातें कम होना, परंपरा की बातें कम होना। लेकिन मंदिर बनने के बाद हमको हमारे धर्म सनातन धर्म के प्रति जागरूकता आई, प्लस जो पूजन अनुष्ठान होते रहे हैं उनकी क्या आध्यात्मिक एस्पेक्ट्स हैं, उनका अपने दैनिक जीवन में क्या प्रभाव है। और हर साल हर अनुष्ठान में आंध्र प्रदेश से बड़े विद्वान देवज्ञ पंडित आते हैं। उनके प्रवचन और उनके मंत्रोच्चारण से मन शुद्ध होता है, वातावरण शुद्ध होता है, हमारी आत्मा शुद्ध होती है और हमारे मन में जो नेगेटिव विचार होते हैं, नकारात्मक विचार, वो बहुत हद तक कम होते हैं। एक प्रकार से कहें कि एक हीलिंग थेरेपी टाइप का काम करता है। मैं तो कहूँगा कि हम अपने बच्चों को यहाँ लाएं, हमारे संस्कृति के प्रति दर्शन कराएं और जो जो अनुष्ठान होते हैं वो उनको देखें, महसूस करें। इन 25 वर्षों से जगदलपुर में बहुत बदलाव आया है। न केवल साउथ इंडियन बल्कि नॉर्थ इंडियन सभी इस अनुष्ठान और पूजन के विधि विधान के प्रति जागरूक हुए हैं और उनमें समझ बढ़ी है और सामाजिक शांति, सांप्रदायिक सद्भाव और वसुदेव कुटुंब की अवधारणा को देवज्ञ पंडित अपने पूजा और अनुष्ठानों से बहुत अच्छी तरह संप्रेषण करते हैं, जिसे हम सबको ग्रहण करना चाहिए। గోవింద గోవింద ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద। నా పేరు వెంకటేశ్వరరావు, जगदलपुर में निवासी हैं। अभी तो 25 साल तक मैं खाना बनाने का वो कार्यक्रम देखते हुए भव्य रूप से हो रहा है। हर साल भव्य रूप से हो रहा है। इस साल अति रूप से हो गया। इस स्वर्णकल 7 दिन 40,000 का आदमियों को आखिरी दिन खाया, पूरा 1 लाख आदमी खाया, मतलब 7 दिन में। इस बार बहुत रूप से हुआ था। రాజమహేంద్రవరం నుంచి వచ్చామండి మేము. గత 10 సంవత్సరాల నుంచి కూడా ఇక్కడ బాలాజీ టెంపుల్లోని రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు, మన ఆదినారాయణ గారు, వెంకట గారు వీళ్ళందరూ కూడా సహకారంతో మేము 10 సంవత్సరాల నుంచి కూడా చాలా బాగా చేసుకొస్తున్నాం. ఈ గుడే కాకుండా మాకు ఈ గుడి నుంచి బాలాజీ సాయి మందిర్ ఒకటి, దంతేశ్వర మందిర్ ఒకటి, అలాగే దంతేశ్వర గుడి ఇవన్నీ కూడా వస్తాం జరిగింది. ఇవన్నీ కూడా 10 సంవత్సరాల నుంచి కూడా చేసుకొస్తున్నామండి. మేము రాజమండ్రి నుంచి వస్తున్నాం. అక్కడి నుంచి ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఈ టీం అంతా కూడా చాలా బాగా చూస్తుంది మమ్మల్ని. ఇక్కడ పూజలు గట్రా
గత 7 రోజుల నుంచి కూడా 10,000 దాకా భోజనం జరుగుతుంది, అన్నదానం. రేపటి మట్టుకి 40,000 దాకా జరుగుతుంది. ఇదంతా కూడా చాలా సంతోషంగా ఆనందిస్తుంది. मंदिर का उद्घाटन से शुरू से पैर मारते समय से यहाँ का चौकीदार हूँ मैं, 25 साल से काम कर रहा हूँ. नमस्कार, मैं लावण्या, डॉक्टर वरलक्ष्मी मैम की स्टूडेंट. हम सब यहाँ पे कुचिपुड़ी प्रदर्शन करने आए हैं और यहाँ का साउथ इंडियन कल्चर छत्तीसगढ़ में देख के बहुत खुश है. और हम सब यहाँ पे एक नहीं बहुत सारे डांस परफॉर्म करने वाले हैं और हम सब यहाँ आके बहुत अच्छा लगा. धन्यवाद. जय गणेश, जय महेश. नमस्कार सभी को. बालाजी भगवान की जय. पिछले 25 वर्षों से हम सब यहाँ से जुड़े हुए, मंदिर कमेटी से जुड़े हुए हैं और ऐसा लगता है मानो आजकल की बात है. समय इतना फास्ट गुजर रहा है और हर वर्ष दिनों दिन प्रोग्रेस ही हो रहा है. मंदिर प्रांगण में इतने सारे श्रद्धालु जुड़ गए हैं और कमेटी के मेंबर भी अधिक से अधिक शहर के लोगों को जोड़ने में हमेशा तत्पर रहते हैं और लोग जुड़ते भी हैं. सेवा देने में कहीं कोई पीछे नहीं रहते. जगदलपुर शहर का सौभाग्य है जो तिरुपति बालाजी मंदिर हमारे जगदलपुर शहर में बना है. इसके अलावा पिछले 5-6 दिनों से कंटिन्यू भंडारा चल रहा है. इस भंडारे में लगभग 5,000, 7,000, 10,000 प्रतिदिन महिलाएं भोजन करती हैं. श्रद्धालु सभी भोजन करते हैं. कल हमारे यहाँ के शहर की सारी मातृशक्तियों ने, यहाँ की सब्जियां पूरी मातृशक्तियों के द्वारा ही कटी है और एक नहीं पूरा शहर जुड़ा हुआ है. आप ही देख सकते हैं हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं यहाँ पर. और जगदलपुर ही नहीं, आसपास के सारे क्षेत्र से लोग सेवा देने आ रहे हैं. नमस्कार. जय भोलेनाथ जी की जय. बालाजी गोविंदा. वेणुकुंडला वेंकटरमण गोविंदा. मैं यहाँ पे बचपन से आ रही हूँ. ये 25 साल हो गया है. मैं इतने दिनों से भक्त बन के आ रही थी. पहली बार मुझे सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है. मैं बहुत खुश हूँ. भगवान का बहुत बहुत कृपा है मेरे पर कि मुझे सेवा करने का मौका मिला है. बहुत बहुत धन्यवाद. जय बालाजी. गोविंदा गोविंदा. मैं शिवाग्नि सिंह. ये मंदिर उत्सव हमारा 25वीं सालगिरह का बहुत उल्लास, उमंग और जोश के साथ मनाया जा रहा है. मैं बचपन से इस मंदिर से बहुत करीब हूँ. मैं जब 3 साल की थी तब से इस मंदिर पे आ रही हूँ और पिछले साल बालाजी ने मुझे ये अवसर दिया कि मैं यहाँ रंगोली बना सकूँ. इस साल भी कुछ ऐसा ही अनुभव हुआ जब मैं यहाँ आके बैठी हुई थी और भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि इस बार आप मुझे अपने तरफ अंदर अपना लीजिए. और पूजा का जो अनुभव रहा है, कुमकुम पूजा का जो अनुभव रहा है वो अद्वितीय रहा है, जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकती थी. जो भी हम लोग ने यहाँ आके सीखा है, जो मैंने सीखा है वो है कि जब भी हम दिल से भगवान को पुकारते हैं तो उनकी भक्ति से हम जुड़ जाते हैं, उनकी आत्मा में हम समा जाते हैं. और मैं चाहूँगी कि हर बार बालाजी मुझे अवसर प्रदान करें हमेशा के लिए. धन्यवाद. धन्यवाद. नमस्कार. जगदलपुर के हृदय स्थल में स्थित बालाजी मंदिर के इस विशेष आयोजन में आज मैं शामिल हूँ. मैं हूँ बालाजी मंदिर के स्थित पास में रहती हूँ और गायत्री नगर में रहते हुए मैं नेहा चौहान आज आपको अपना ये एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ. ये 7 दिन का उत्सव यानी रजत जयंती 2001 में आया अपना बालाजी मंदिर को आज 25 वर्ष हो चुके हैं. इस भव्य आयोजन 7 दिन का था जिसमें शोभा यात्रा, कुमकुम पूजा, सत्यनारायण पूजा, भगवान जी का अभिषेक और ना जाने बहुत सारी पूजा हुए. और इसमें शामिल बहुत सारे भक्तजन, अगर देखा जाए तो 1000 से लेकर 1500 भक्तजन रोजाना आते यहाँ पर दर्शन करते बालाजी भगवान का और यहाँ के भंडारा और प्रसाद का खाते हुए मंत्रमुग्ध होकर यहाँ से खुशी खुशी जाते हैं. यूँ तो बस्तर बालाजी को इस बार नाम दिया गया, जो हमारे जगदलपुर के बालाजी को अब बस्तर के बालाजी के नाम से जाना जाएगा, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ा नाम है. तो हमारे बस्तर के बालाजी का ऐसे ही दर्शन करते आइए. नमस्कार. गोविंदा गोविंदा. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए. यहाँ मां दंतेश्वरी की पावन भूमि जगदलपुर स्थित तिरुपति बालाजी मंदिर का रजत जयंती समारोह हम समस्त क्षेत्रवासियों को, आंध्रवासियों को
रजत जयंती समारोह की बहुत बहुत बधाई शुभकामना देते हैं और प्रभु बालाजी भगवान से प्रार्थना है कि उनका आशीर्वाद हमेशा छत्तीसगढ़ और हम लोगों को मिलता रहे, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो। कार्यक्रम में बस्तर के राजा भी शामिल हुए। धन्यवाद देना चाहता हूं कि पूरे के पूरे आंध्र समाज के जो हमारे पूरे लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, श्रीनिवासराव मद्दी जी, वासु जी और साथ साथ पूरे आंध्र समाज के जो पूरी समिति है, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ इस रजत जयंती के लिए, जिसमें कि मुझे भी सौभाग्य मिला कि वेंकटेश प्रभु का दर्शन करने का मौका, और साथ साथ सभी जगदलपुर के साथ साथ ये बस्तर के लिए बहुत बड़ा एक इतिहास है कि इतना सुंदर मंदिर और इतना अच्छा कार्यक्रम। मैं पूरे की पूरे टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ और समिति को खास तौर से मेरे तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम आपने रखा, और प्रभु का आशीर्वाद माई दंतेश्वरी के साथ साथ वेंकटेश प्रभु का आशीर्वाद हम सबके साथ बना रहे। धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण। आज ऐसा लग रहा है कि कल की बात है, 1999 में जब यहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुआ था, और 2001 में जब इसका पूरा शिलान्यास और प्राण प्रतिष्ठा के बाद 25 वर्ष ऐसा लग रहा है कि पलक झपकते ख़त्म हो गए। आज मैं अभिभूत हूँ इस विहंगम दृश्य को देखकर। जब यहाँ शिलान्यास और प्राण प्रतिष्ठा हुआ था, उस समय का दृश्य और अभी का दृश्य जगदलपुर का एकदम आसमान तो पर लग गया यहाँ के विकास के लिए। जब यहाँ शिलान्यास हुआ था तो पूरा दलदल था क्षेत्र, और यहाँ से अनुपमा टाकीज से आगे कोई रिक्शा तक नहीं मिलता था। यहाँ से 5 किलोमीटर आगे तक आपको घर के लिए जगह नहीं मिल रही है आजकल। मैं सभी भक्तजनों का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। पूरा जगदलपुर माई दंतेश्वरी की पावन धरा पर जो बालाजी भगवान यहाँ विराजे हैं, आज 25 वर्ष पूर्ण हुए हैं। और जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत सवाल है, सेवा का जो मुझे भगवान वेंकटेश्वर स्वामी जी ने दिया है, मैं निश्चित रूप से पिछले जन्मों का मैं फल भोग रहा हूँ, मैं पुण्य का फल भोग रहा हूँ कि मुझे ऐसा मंदिर में एक सेवक के रूप में कार्य करने का मौका मिल रहा है। जहाँ तक महत्ता का विषय है, हम सब जो ट्रस्टी हैं 25-35 लोगों का, हमारा कोई महत्व नहीं है। आप लोग बहुत ही सामान्य लोग हैं। महत्व है तो भक्तों का, महत्व है जनता जनार्दन का, जिन्होंने अपने दान से, अपने श्रम से और अपने आस्था से इस मंदिर को आज यहाँ तक पहुँचाया है। और निश्चित रूप से मंदिर से जुड़े हुए हर व्यक्ति का, चाहे वो मजदूर के रूप में हो, चाहे वो दानदाता के रूप में हो, चाहे सेवक के रूप में हो, चाहे हम जैसे बहुत ही सामान्य लोगों के रूप में हो, मंदिर से जिसने भी जुड़ा, आज वह निश्चित रूप से तरक्की किया। और भगवान बालाजी का जो अनुकरणा और करुणा आशीर्वाद उनको मिला है। और मैं सभी भक्तों से विनम्र निवेदन करता हूँ और धन्यवाद अर्पित करता हूँ। ये 25वां वार्षिकोत्सव ऐसा वैभव से गुजरेगा, हमने सोचा नहीं था। ये आप सबकी भक्ति, मेहनत और समर्पण का ही फल है कि आज हम इस परिस्थिति में हैं। पिछले साल 2025 के फरवरी से इस मंदिर का रजत जयंती वर्ष प्रारंभ हुआ, जो अभी 29 जनवरी 2026 को भीष्म एकादशी के दिन उत्सव के रूप में रजत जयंती उत्सव मनाया गया। इस बीच अप्रैल 2025 से मैं यहाँ का नया अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। अब ये भगवान की इच्छा या आशीर्वाद मानता हूँ मैं कि मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि रजत जयंती वर्ष में मैंने अपना अध्यक्ष की कार्यकाल प्रारंभ किया। और यह साल पूरा काफ़ी अच्छा था, सब कुछ ठीक चला है, बहुत ही अच्छे से संपन्न हुआ। सबका साथ सहयोग मिला मेरे को, सब समाज का, सभी समाजों का सहयोग मिला और कार्यक्रम बहुत भव्यता से, अभूतपूर्व तरीके से संपन्न हुआ। ये सब भगवान का आशीर्वाद ही मानता हूँ मैं, और उनके मार्गदर्शन, नेतृत्व और कृपा से ही ये संभव हुआ है। और हमारे सदस्यों ने भी बढ़ चढ़कर साथ दिया है और एक मास्टर प्लान बनाया गया इस बारे में। हम यहाँ मंदिर में बैठक करते थे, मंदिर के बाहर भी बैठक करते थे इसको सफल बनाने के लिए, और सभी बैठकों का निष्कर्ष ये रहा कि कार्यक्रम जो है भव्यता से संपन्न हुआ, वार्षिकोत्सव कार्यक्रम। मैं यही प्रयासरत हूँ कि सबको जोड़ा जाए, युवाओं को भी जोड़ा जाए इसमें, और जो आधुनिकता के उसमें चले गए हैं, युवा वर्ग जो चला गया है, वो इससे जुड़कर रहे, अपनी संस्कृति को ना भूले
और धार्मिक आस्था जो है वो बनी रहे और भगवान की कृपा हमेशा सब पर बनी रहे, यही मैं चाहता हूँ। अब तक की सफलता और कुशलता के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। हम सब पर अपनी कृपा, आशीर्वाद और मार्गदर्शन बनाए रखना प्रभु। हमारा जीवन आपको समर्पित है। सनातन शास्त्र, शक्ति, श्रद्धा, संस्कृति की प्रतिरूप है हमारे हिंदू समाज के लिए देश भर के मंदिर, जहां विभिन्न देवी देवता विराजते हैं। हमारे बस्तर में विराजे हैं भगवान श्री 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 वेंकटेश्वर स्वामी, जो जीवन पर्यंत हमारी हर मंगल मनोकामना पर कहते हैं तथास्तु तथास्तु तथास्तु।